Hello everyone, my name is Amit Mandloi and welcome to online platform of Rouse Academy. Let's begin with today's daily news review. The first article that we are going to discuss is regarding interstate river dispute. Interstate river dispute. So there is a river known as Ponnaya River which flows across two states. One is Karnataka, that is the origin state, and another one is Tamil Nadu. So this Ponnaya River originates from Nandi Hills, Karnataka, and falls in the Bay of Bengal in Tamil Nadu. It is the second longest river flowing across Tamil Nadu, and there are some famous dams on it: Krishnagiri Dam, Sathanur Dam. It is the eastward flowing river. So all these are some factual data about Ponnaya River. There are some tributaries: Chinar, Markadeya. So Markadeya is the cause of the current dispute that is going on between Karnataka and Tamil Nadu. The Karnataka government is making some check dams on this tributary, and because of which Tamil Nadu government is objecting on these construction of these check dams, and they have filed a case in the court. Supreme Court 3 months back gave a order to the central government with a 3-month deadline. Within 3 months, the central government should make a tribunal for the cause of this, for the settling this dispute between these two states. But even after the expiry of those 3 months, till date, there is no such tribunal constituted. So this article is related to that particular thing only. So what gives power to the central government to intervene in matters of interstate water dispute? Article number 262 of Indian Constitution empowers the Parliament that Parliament may by law make laws in respect to adjudicate water disputes. For adjudication of water disputes, Parliament is empowered to make a law. तो पार्लियामेंट को लॉ बना करके एक ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करना है, और वो ट्रिब्यूनल जो है दोनों ही स्टेट के कंसर्न्स को सुनेगा एंड निर्णय देगा, डिसीजन देगा कि व्हाट काइंड ऑफ वाटर शेयरिंग शुड बी देयर एंड व्हाट constructions could be done, what construction could not be done, what sharing of water would be done by Karnataka and Tamil Nadu in this case. So this matter is related with interstate water dispute. एक आर्टिकल हमको पढ़ने को मिला और कुछ ज्योग्राफी से संबंधित जानकारी हमको देखने को मिली. पास्ट में ऐसे बहुत सारे वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर्स इंडिया में हो चुके हैं. कावेरी रिवर डिस्प्यूट, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स भी बन चुके हैं. नर्मदा वाटर ट्रिब्यूनल है, ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हमारी कंट्री में बन चुके हैं रिलेटेड टू द एडजुडिकेशन ऑफ रिवर डिस्प्यूट्स फ्लोइंग अक्रॉस 2 और मोर स्टेट्स. 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स में अगर कोई रिवर बहती है तो उनके वाटर शेयरिंग को लेकर के स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं. उसके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है. आर्टिकल 262 के अंतर्गत पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू द डिस्प्यूट गोइंग ऑन बिटवीन द एक्स सीएम ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज Uddhav Thackeray, and the governor, the erstwhile governor, and because of which their government was toppled by trust vote basically. But trust vote होने के पहले ही ठाकरे जी ने इस्तीफा दे दिया था. सो इसके लिए कोर्ट में केस चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट हैज रिजर्व्ड इट्स जजमेंट रिगार्डिंग द महाराष्ट्र पॉलिटिकल जो ड्रामा इतने दिनों तक चला, एंड टॉपल की गई गवर्नमेंट, और एकनाथ शिंदे जी अभी वर्तमान सीएम बने. वहां पर शिवसेना के फैक्शंस हो गए. ठीक है, तो ये सब जितना ड्रामा चला उसके रिगार्डिंग एक केस है. इस केस की समरी इसके आखिरी पैराग्राफ में आपको मिल जाएगी. कपिल सिब्बल, हु इज जस्ट एडवोकेट फॉर द Thackeray group. So they have told the court, and that has been summarized in the last paragraph of the justice himself, that by saying it, according to the senior lawyer, the governor could not call for a trust vote if a member party in a coalition shift, or not when individual within a party leave. कब गवर्नर तभी ट्रस्ट वोट कॉल कर सकता है जब एक पार्टी कोएलिशन शिफ्ट करे, ना कि कुछ इंडिविजुअल मेंबर्स पार्टी शिफ्ट करे. ठीक है, तो इस तरीके से कपिल सिब्बल जी ने वहां पर बताया. एंटी डिफेक्शन लॉ का केस है. एंटी डिफेक्शन लॉ was introduced by 52nd Constitution Amendment Act
इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आयाराम गयाराम केस हुआ था। ठीक है, हरियाणा के एमएलए थे जिन्होंने एक ही दिन में 3-3 बार पार्टी बदली थी। ठीक है, शेड्यूल 10 इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे डिफेक्शन को रोका जा सके। ठीक है, शेड्यूल 10 इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस होल केस पर्टेन्स टू दैट ओनली, डिफेक्शन। तो यहां पर बोला गया है कि क्या किस केस में गवर्नर ट्रस्ट वोट कॉल कर सकते हैं। ट्रस्ट वोट जब कॉल कर सकते हैं जब एक कोएलिशन गवर्नमेंट के कोएलिशन पार्टनर्स बिखर जाएं। इस केस में गवर्नर ट्रस्ट वोट नहीं कॉल करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कुछ फैक्शन हो जाए। भले ही वो पॉलिटिकल पार्टी किसी के साथ कोलिशन में सरकार चला रही हो, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर फैक्शन हुआ है तो दैट इज द इंटरनल मैटर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट हियरिंग्स में भी कहा है कि गवर्नर शुड नॉट डू एनी सच थिंग विच कुड precipitate the toppling of the government or the fall of the government। ऐसी कुछ भी चीज गवर्नर को नहीं करनी चाहिए। इन द सेम हियरिंग एससी हैज आल्सो सेड दैट कि इस डिसीजन में हम भले ये जरूर बोल सकते हैं गवर्नर हैज डिड रॉन्ग, या गवर्नर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या गवर्नर ने ट्रस्ट वोट कॉल किया ये गलत है उनके पार्ट पर, लेकिन इस तरीके से इस डिसीजन के माध्यम से क्या हम ये कर सकते हैं कि एक ऐसे सीएम को रीइंस्टेट कर दें सरकार के अंदर जिसने फ्लोर टेस्ट भी फेस नहीं किया हो, क्योंकि फ्लोर टेस्ट फेस करने के पहले ही गेव हिज रेजिग्नेशन टू द गवर्नर। तो क्या इस केस में हम वापस से डिसीजन लेकर के सीएम को रीइंस्टेट कर दें या पुरानी गवर्नमेंट को रीइंस्टेट कर दें, तो ये तो उस पार्ट पे गलत होगा। अगर फ्लोर टेस्ट में गए होते और वहां पर फेल होते, ट्रस्ट वोट नहीं मिलता उनको, उनके फेवर में नहीं आता और उनको जाना पड़ता और फिर ये केस चलता, तो हम ये मान सकते थे कि उनको हम रीइंस्टेट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट वोट के पहले ही इस्तीफा दे दिया तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। मतलब इस केस के अंदर लीगल सेंस में उनको रीइंस्टेट करना मुश्किल है। इस तरीके से सवाल जवाब किए गए, तो इसके बारे में हमने लास्ट 2 दिनों से काफी चर्चा की है, तो विल नॉट बी गोइंग इनटू मच डिटेल। नेक्स्ट, NIOT, National Institute of Ocean Technology, is working to set up green self-powered desalination plant in लक्षद्वीप। क्या आपने सोचा है लक्षद्वीप जैसी जगह में, लक्षद्वीप जैसे आइलैंड ग्रुप में स्वच्छ पानी कैसे मिलता होगा? वहां ज्यादा रिवर्स भी नहीं है कोई, ठीक है, वहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम ड्रिल कर लें और पानी ज्यादा निकाल लें, क्यों ना, कोरल रीफ से बना हुआ है ज्यादातर। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं लक्षद्वीप के साथ। तो इसलिए किस तरीके से हम लक्षद्वीप में पानी की उपलब्धता कराएं, ड्रिंकिंग वाटर की उपलब्धता कराएं, डेली यूज का जो वाटर नीड्स है उसको कैसे फुलफिल किया जाए, तो उसके लिए किया जाता है डीसैलिनेशन। और डीसैलिनेशन अभी प्रेजेंटली वहां पर किया जाता है डीजल जनरेटर्स की मदद से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी वहां तक पहुंचाना मुश्किल है। इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाए? नहीं की जा सकती। टाइडल एनर्जी कैन बी जनरेटेड बट इट इज स्टिल अंडर प्रोसेस। टाइडल एनर्जी किस तरीके से इकोनॉमिकली हम जनरेट कर पाए, तो डीजल इंजन की मदद से हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं डीसैलिनेशन प्लांट को on obtained water, and because of use of diesel there is lot of emission on this area is basically a very eco sensitive zone। ठीक है, इकोलॉजिकली इट इज वेरी सेंसिटिव, तो वहां पर अगर कुछ emissions होते हैं, pollutions होते हैं, तो that is not good for the ecological system there। तो इसलिए NIOT, National Institute for Ocean Technology, is working on सम ग्रीन सेटअप, कि ग्रीन तरीके से सेल्फ पावर्ड डीसैलिनेशन प्लांट वहां पर लगाए जा सके। 5 ऑलरेडी लग चुके हैं, 4 और लगने हैं, और 10th वाला जो है वो NIOT स्टैब्लिश करने का प्लान कर रहा है, जिससे कि बिना डीजल के उपयोग से सेल्फ पावर्ड से वो पूरा डीसैलिनेशन प्लांट चल सके या कम एमिशन से चल सके, ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है। तो हमारे लिए एनवायरमेंट वाले चीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और डीसैलिनेशन मतलब एक इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है कि ओशन थर्मल एनर्जी के माध्यम से ऐसी चीजें हम कर पा रहे हैं। जस्ट एन इंफॉर्मेटिव आर्टिकल, नथिंग मोर। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट हैज सेड दैट फर्स्ट टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन अंडर गगनयान वुड लाइकली टेक प्लेस इन मई। गगनयान क्या है? गगनयान इसरो का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी वो प्रदर्शित कर सके, दिखा सके
ठीक है, टेस्ट कर सकें, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। और इसके अंतर्गत 3 मेंबर्ड क्रू विल बी सेंट एट एन ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर हाइट फॉर 3 days। 3 दिन के लिए 3 मेंबर्स को 400 किलोमीटर ऊंचे मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा और 3 दिन तक रखा जाएगा और वापस उनको सेफली लैंड करवाना, ये पूरा मिशन है, ठीक है। GSLV Mk3 जिसको हम LVM भी बोलते हैं, इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। 5 to 6-7 days स्पेस में रह सकता है, लेकिन हमको 3 दिन रखना है और वापस से लेकर के आना है और लैंड कराना है। तो दिस इज द होल मिशन मैप, ठीक है। लॉन्च 2022 बोल रहे थे, लेकिन अब इट हैज बीन शिफ्टेड टू 2024 लेट और 2025 एंड इट इज स्टिल इन प्रोसेस। सो इट डिपेंड्स कि डेमोन्स्ट्रेशन और टेस्ट इनमें कितना टाइम लगता है। हिट एंड ट्रायल वाला मामला है, रिस्क नहीं लिया जा सकता। अगर हम ये सक्सेसफुली लॉन्च कर देते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, तो वी विल बी द 4th कंट्री टू डू दिस, टू अचीव दिस फीट। एंड already Russia, USA and China have achieved the feat. So गगनयान प्रोजेक्ट बाय इसरो और बड़ा प्रोजेक्ट है टू डेमोन्स्ट्रेट द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेक्नोलॉजी से संबंधित आर्टिकल था ये। इसके बाद देखते हैं इलेक्शन कमीशन प्रपोजल फॉर ई पोस्टल बैलेट फॉर ओवरसीज वोटर्स अंडर डिस्कशन। Electronically transferable postal ballot system, ETPBS, it has already been introduced, ठीक है, but introduced only for whom? Only for service voters, those voters who are in service, they can use postal ballots and postal ballots की वजह से वोटर टर्नआउट कम होता था, इसलिए they can use electronically transferable postal ballot system, ई पोस्टल बैलेट जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से वो वोट कर सकते हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में हमने पायलट के तौर पर इसको यूज भी किया है, ठीक है। नाउ व्हाट द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमीशन इज प्रपोजिंग, दे आर प्रपोजिंग टू इंट्रोड्यूस द सेम ई पोस्टल बैलेट फॉर दोज वोटर्स हु लिव ओवरसीज। ओवरसीज वोटर्स मतलब NRI, and only those NRI who have not taken citizenship of any other country. Already voting rights are available with NRIs who have not registered themselves as a citizen of any other country. In 2011 voting rights are already given by amending RPA Act, Representations of People Act 1950 को अमेंड करके 2011 में already NRIs who have not registered themselves in any other country as citizens are can register with Election Commission of India for voting in India. ऐसे अधिकार 2011 में उनको मिल चुके हैं by amending the RPA Act. But जो टोटल वोटर टर्नआउट है वो काफी कम है। Approximately 1.15 lakh voters, NRIs, overseas voters are registered with Election Commission of India who can vote in person, मतलब उनको खुद आना पड़ेगा और वोट करना पड़ेगा, ठीक है। पर खुद आना इतनी दूर से और वो भी वोट डालने के लिए और वहां पर उनके सारे कामकाज छोड़ करके आना कई बार पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से सिर्फ 25,000 पीपल्स केम इन द लास्ट इलेक्शंस, तो ये इतना ही टर्नआउट है, लेस देन 25%, ठीक है। और इस वजह से गवर्नमेंट चाह रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाह रहा है कि ओवरसीज वोटर्स को वोटिंग की सुविधा वहीं प्रदान करने के लिए, ताकि उनको इंडिया ट्रैवल ना करना पड़े, उसके लिए 2 ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं। पहला है ETPBS, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफरेबल पोस्टल बैलेट सिस्टम, ई पोस्टल बैलेट, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन इज प्रॉक्सी वोट। तो प्रॉक्सी वोट के माध्यम से कर दिया जाए या फिर ETPBS के माध्यम से कर दिया जाए। अगर ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को अमेंड करना पड़ेगा और ऐसा प्रपोजल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को दिया है, इसको अमेंड किया जाए। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व है, राज्यसभा को उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि हम ऐसे कुछ प्रावधान लेकर के आ रहे हैं। तो ETPBS के बारे में जानकारी होनी चाहिए, NRIs को वोटिंग के अधिकार कब दिए गए भारत सरकार के द्वारा वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे कौन से NRIs को वोटिंग के अधिकार है, किस तरीके से वो वोट कर सकते हैं इन करेंटली,
ठीक है, और क्या प्रपोज्ड है, तो ईटीपीबीएस प्रपोज्ड है, प्रॉक्सी वोटिंग प्रपोज्ड है, लेकिन अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड कंसिडर, ठीक है। अभी वोट इन पर्सन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये प्रपोजल्स हैं, अभी इस पे अमेंड होना, इस पे अमल किया जाना बाकी है, अमेंड करना, रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही ईटीपीबीएस की सुविधाएं जो है ओवरसीज सिटीजन्स को मिल पाएंगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं आज के लेक्चर और पुराने कुछ डिस्कशन जो हमने लिए उसके ऊपर बेस्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 263 a permanent interstate council known as intergovernmental council should be established. The constitution itself should lay down the process for consulting the chief minister when appointing a state governor. And third statement is article 356 precedent rule should be used very sparingly in extreme cases as the last resort when all the available alternative fail. Which of the above statement was not tendered by Sarkaria Commission? कौन सा रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन ने नहीं दिया था? सरकारिया कमीशन जेएस सरकारिया, जस्टिस जेएस सरकारिया, ठीक है। और कब बनाया गया था? 1983 में बनाया गया था। इंटर स्टेट रिलेशंस को रिव्यू करने के लिए कमीशन बनाया गया था, जिनकी बहुत सारी रिकमेंडेशन मानी है। 247 रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी, जिसमें से 180 रिकमेंडेशन अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट मान चुकी है। तो ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इन 3 रिकमेंडेशन में से कौन सी ऐसी रिकमेंडेशन है जो उन्होंने नहीं दी थी। तो पहली वाली देख लीजिए, तो इंटर स्टेट काउंसिल उन्हीं की रिकमेंडेशन पे बना है, ठीक है। और गवर्नर के अपॉइंटमेंट के केस में चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट किया जाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन भी उन्होंने दी है। और प्रेसिडेंट रूल के केस में भी रिकमेंडेशन दी है कि इट शुड बी यूज्ड वेरी स्पेरिंगली एज द लास्ट रिजॉर्ट। तो कोई भी ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव। ऑल 3 रिकमेंडेशंस आर गिवन। और हमसे पूछा है विच इज नॉट टेंडर्ड, तो क्वेश्चन में नॉट पढ़ना जरूरी है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question says that consider the following statement. 50% reservation is provided to women in local bodies in all states. Reservation for women is available in state legislative council. Women's reservation in parliament is 33%. Which of the above statement are correct in relation with women's reservation in India? महिलाओं के संबंधित रिजर्वेशन के संबंधित अभी मामला बहुत गरमाया हुआ भी है, ठीक है। Recently a 6 hour long hunger strike was as a protest tool was made in front of the parliament, है ना, by BRS leader कविता। सो ऐसी चीजें चल रही हैं, ठीक है। सीपीआई के लीडर, ठीक है, सीताराम येचुरी जी भी वहां पर मौजूद थे इस पर्टिकुलर वुमेन रिजर्वेशन बिल के सपोर्ट में। एंड वुमेन रिजर्वेशन बिल्स काफी समय से चल रहे हैं, 1971, 1988, उसके बाद में ये बिल्स आने का प्रक्रिया चालू की गई 1996, 98, 2000, 2002, ऐसे बहुत बार ऐसे बिल्स आ चुके हैं पार्लियामेंट में। लास्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008, जिसको 2010 में राज्यसभा ने पास किया, और लोकसभा में जाके बिल 15th लोकसभा डिसॉल्व होने के साथ ही वो बिल भी लैप्स हो गया। तो बहुत सारी चीजें इसमें हो चुकी है पास्ट में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया है कि इंडिया में पॉलिटिकल रिजर्वेशन, वुमेन्स के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की अगर बात करें तो कहां कहां अवेलेबल है। तो क्या 50% रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू वुमेन इन लोकल बॉडीज इन ऑल स्टेट्स? सब जगह तो नहीं है। सब जगह कितना प्रोवाइड किया जाता है? 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड। क्या रिजर्वेशन फॉर वुमेन इज अवेलेबल इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? क्या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में वुमेन के लिए रिजर्वेशन अवेलेबल है? नहीं। ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑल स्टेट्स बोला है। कुछ स्टेट्स ने 50% रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया है पंचायत में, म्युनिसिपैलिटी में, बाकी हर स्टेट ने नहीं दिया। वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट इज 33%। नहीं, इसके लिए चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, नीचे कोड्स में से ढूंढना है। तो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। अगेन आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के हमको पूछे जाते हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है, तो आज का ये करंट अफेयर्स का डिस्कशन आई होप आपको अच्छा लगा हो। और अगर अच्छा लगा हो ये डिस्कशन तो नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके, बटन्स पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।